सारे बने दो से तीन। एक मिनट। ठीक है, अभी ठीक है, वॉइस ठीक है अभी? चलो, विजिबल है ना? Now started data analysis and results reliability analysis. Cronbush alpha was used to assess internal consistency. All constructs show highlight reliability that is greater than uh, less than greater than 0.89. So values above 0.70 are considered acceptable. All values exceed this threshold. The scale used are statistically reliable and further analysis. Process track sometimes goes off. Picture away like this. So, यहाँ पे क्या दिया? चलो एरो की अभी एरो total participants 200 was 250. Male participants are 140. Female participants were 105. Gender distribution shows a high number of male respondents. Male representation was 58%. Female representation was 42%. 1 to 5 years, 1 years to 5 years of experience were 80 participants. That was 32%. 6 years to 10 years of experience was 100 participants. That was 40%. 11 to 15 years of experience, 45%, 45% participants, and that shows 80%, 18%. 16 plus years of experience, 25 participants, and that shows 10%. Majority of participants, 72%, have up to 10 years of experience. Only 10% participants have over 16 years of experience. Like now, descriptive statistics, organizational culture, organizational culture rated highest mean, that is 3.80. Stakeholder involvement positively perceived means 3.60. Supervisory decision making moderately trusted means 3.50. Project success showed mixed outcomes. Standard deviation ST is equal to 1.0. Supervisor bias consistently noted means 3.20 and standard deviation is equal to 9.95. Correlation, likewise, correlation analysis. Supervisor biases has a negative correlation with organizational culture, R is equal to -1.5. And supervisor biases negatively correlate with stakeholder involvement, R is equal to -0.25. That is -2.5. Supervisor bias has a negative correlation with project success, that is -0.15. Organizational culture positively correlate with stakeholder involvement, that is 0.35 double star, means strongly significant. Culture of organization culture has positive correlation with project success, that is 0.40. Stakeholder involvement shows a positive correlation with project success, that is 0.45. Strong correlation observed between stakeholder management and project success. All positive correlations are statistically significant. Supervisor bias shows weak negative relation with other variables. Multiple regression analysis was also conducted, and in this we make a test on NOVA analysis. NOVA shows a significant difference in project success across 5 banks. That is F is equal to 4.25 and Vita is equal to
P is equal to 0.001. Means project success score range from 3.1 to 3.6. Supervisor bias has a negative effect. Organizational culture has a positive effect. Stakeholder involvement shows a positive effect. Decision making shows no significant effect. The model explains 45% of the variance in project success, that is R is equal to R square is equal to 0.45. Mediation analysis, supervisor bias, negative effects of organizational culture coefficients is equal to -25, P is equal to 0.002. Supervisor bias has a negative impact on project success, that is coefficient is equal to -0.32 and P is equal to 0.001. Organizational culture positively influence project success, coefficient is equal to, that is coefficient is equal to 0.55 and P is equal to 0.00. Mediation effect of organizational culture between supervisor bias and project success is significant, coefficient is equal to 0.14 and P is equal to 0.004. Likewise, hypothesis testing of hypothesis was conducted. H1 supervisor bias negative impact on project success, that is P is equal to 0.001. That is also supported, as I mentioned in my thesis, that supervisor biases always make a negative impact on project success. H2, transparent decision making reduce the impact of supervisor bias on project success. P is equal to 0.25. Non-significance R is equal to 0.45. Partially supported. Organization culture positive impact project success 0.002. That is also supported. H4, stakeholder involvement positively impacts project success is equal to 0.022. That is also supported. Now I discuss conclusions of my thesis. Supervisor bias negatively affect project success by promoting favoritism and poor decision. Structured decision making can partially reduce the impact of supervisor bias. Organization culture moderate the effect of bias, offering protection through fairness and inclusivity. Stakeholder involvement reduce the negative influence of supervisor bias and enhance project outcomes. Supervisor bias remains a key barrier to effective project management. Simple and transparent decision making process help mitigation but not fully eliminate bias. Strong organizational culture and stakeholder engagement promote project success. Training and open decision paths can help organization reduce biases. Findings supported further research into bias and decision making across different organization settings. The study highlights practical approach to minimize bias and improve project outcome. Now I'll discuss recommendation of my thesis. Standardize decision making through clear SOPs and transparency to minimize supervisor bias, strengthen the organizational culture and promoting fairness, inclusivity and open communication, enhance stakeholder engagements by involving them throughout project planning and execution. Invest in supervisor training, focus on equity, bias awareness, and merit bias-based decision making. Encourage further research to explore bias dynamics in different organizational and project contexts. Future directions. Investigate the long-term effects of supervisor bias on project success. Remain how bias impacts vary across industries and regulatory environment. Explore methods and process that can mitigate supervisor bias. Provide practical implication to improve decision making in organizations. Study the role of stakeholder participation in influence performance outcome. Thank you. Thank you. Is there any question? I shall try to answer as
सर हम इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं? सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, सर अब आ प्लीज। रही है, अब आ रही है बात। बोले। जी जी सर। जी बताएं। सर क्वेश्चन कर सकते हैं सर? जी जी। सर थोड़ा सा वॉल्यूम आप, मैं मेरे तो मेरे उनकी भी आवाज मुझे वीक आ रही है। जी बताइए। सर ये कंप्लीट जो है ना, आपका जो सर डिफेंस प्रपोजल है सर, ये इसको सुनना है। इसमें सर एक तो ये चीज़ है कि इसमें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि ये एक वे फॉरवर्ड है या प्रॉब्लम फाइंडिंग है सर। कि इसमें मुझे तो सर जस्ट वो इशू जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर सर जो इश्यूज आते हैं, बायसनेस जो होती है, वो तो सर इसमें नज़र आ रही है। उसके ऊपर सर आपने SPSS मॉडल भी सर आपने चुना, सारी चीज़ें उसके अंदर सर आपने एक एनालिटिकल डाटा भी उसमें डाला। लेकिन जो आपने 5 बैंक से उठाए, उनका डाटा जो आपने इस पे यूजर्स उठाए हैं जिससे आपने क्वेश्चन सर फिल करवाया, उसका सर कुछ एनालिटिकल इतना कुछ क्लियर नहीं है सर, इसकी कौन से बैंक से उसका इम्पैक्ट क्या था। और सेकंड सर क्वेश्चन ये है कि जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं जो आपके एम्प्लॉयज में नज़र नहीं आते, लेकिन क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं वो लोग। जिस तरह अभी सर एक रिसेंट एग्जांपल है, ये जो एस्ट्रोनॉमर सर था, इसकी जो CEO और HR के बीच, अनटिल अनलेस जब तक ये चीज़ पब्लिकली वो नजर नहीं आई तब तक लोगों को पता नहीं था, और उसने कितने फ्यूचर गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डैमेज किया होगा। इसके लिए सर कोई मॉडल इस तरह की चीज वो भी इसमें सर कुछ नजर नहीं आई। जस्ट एक एनालिटिकल सर इसके अंदर वो चीजें नजर आई हैं कि, और ये बेसिक एक्चुअली ऑलरेडी ये मेथोडोलॉजीज ऑलरेडी काफी टाइम से चल रही हैं। नहीं, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके अंदर ये जो मेरी पर्टिकुलरली मैंने तो फोकस किया सुपरवाइज बाइस पर। और ये जो आपका दूसरा सवाल है, पहला सवाल नहीं, पहला सवाल जो है ना, उसको जो मैंने अंडरस्टैंड किया वो आपने बैंकिंग जो पांच मैंने जो फोकस किए बेसिकली, कहीं सम आओ हम लोग जो प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक फिर भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, जहाँ पे बाइसेस कम होती हैं, फेवरेटिज्म कम होती है। लेकिन एक नेचुरल कल्चर होने के हिसाब से हमारे मुल्क में, या ये कल्चरल इन्वायरमेंट होने के हिसाब से, जो कल्चर अडॉप्ट किया जाता है उसके अंदर बॉस को खुश करके आप मतलब एक रेस कर सकते हैं अपनी उस चीज को, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को भी रेस कर सकते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो फेवरेटिज्म होती है, और सम टाइम जो सुपरवाइजर बाइस होती हैं, वो प्रोजेक्ट को सक्सेस भी करती हैं। लेकिन क्योंकि मैंने फोकस करना था अपने टेस्ट टेस्ट को, और टेस्ट के ऊपर मैंने उसको करना था, मेरे रिस्पॉन्डेंट्स जो थे वो पर्टिकुलरली फोकस थे 5 पब्लिक लिमिटेड बैंक्स, जो गवर्नमेंट के बैंक थे। प्राइवेट बैंकों को मैंने टच नहीं किया, मैंने पब्लिक जो बैंक थे, क्योंकि वहां पे ज्यादा ये चीज मेच्योर होती है, वो कल्चरल है, मेच्योर होती है, तो इसलिए उन 5 बैंकों को मैंने किया। मेरे जो थीसिस इसके साथ अटैच है, मेरी थीसिस के साथ क्वेश्चनरीज, उसके अंदर आपको डाटा भी मिल जाएगा, उसके अंदर सारी की सारी चीजें हैं। सेकेंड, मुख्तलिफ थ्योरीज रिलेटिंग टू माई टॉपिक, उसको इस वक्त मैंने रीड आउट किया, तो वो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं अपनी स्टडीज़ के अंदर, वो उस तरह उसके अंदर आ रही हैं। मैं अपनी डोमेन के अंदर हूँ, उस डोमेन से अगर मैं बाहर निकलता तो फिर तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें दिखानी करने के लिए, तो मैंने उसी को फोकस किया। उसको फोकस करते हुए जो चीज़ मेरे पास आई, जो फेवरेटिज्म होती है, जो एक कल्चरल चीज़ें होती हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया, वो उसी तरीके से ये रूट आउट होती हैं। अगर मेरी क्लैरिटी आंसर सर की मुझे आगे ना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताएं, मैं फिर इस आगे प्रोसीड। पे जो एक्चुअली ना जो बायसनेस है ना, वो बायसनेस जो है ना, मुझे उसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं हुई। क्योंकि सर देखें, मोस्टली स्टूडेंट्स अभी जितने भी हैं जो अभी क्लास में बैठे भी हैं, हम सब ना सर एक प्रोफेशनल एक उसमें चले आ रहे हैं एक अरसे से। ठीक है सर, तो हम तो सारी चीज़ें देखते आते हैं कि प्रोजेक्ट्स पे कैसे चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन उनका कोई भी एक जो जो है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, ना ही आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल के अंदर, ना ही किसी चीज़ और के अंदर। तो इसलिए मेरा सर ये क्वेश्चन आपसे था कि कुछ इसमें स्वाय स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल इनके वर्किंग मॉडल्स के अलावा कुछ भी उसमें सर न्यू अप्रोच जो है ना, वो मैं इसमें इंटरेस्टेड था कि कुछ उसमें नजर आए। तो वो नहीं थी। अच्छा सर, काइंडली वो आप अपने 5 जो आपने क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? इसमें नहीं है मेरे पास वो लैपटॉप, वो मेरे पास लैपटॉप में है, वो कहेंगे तो अच्छा अभी खोल लूँ।
there are many things which are missing now. बहुत ज़्यादा जो ना वो abstract बातें कर रहे हो, clarity नहीं किसी को करना, तो वो open होंगी जब आप वैसे जब खोलेंगे किया जाए। आप इसका कहाँ पे क्वेश्चन इसमें से डॉक्टर साहब को भेजते हैं वो कोई क्वेश्चन करने ये भेजना डॉक्टर साहब मुझे भेज देंगे फॉरवर्ड करके डॉक्टर साहब सर मैं आपको भेजता हूँ, जी आप मतलब आप ज्वाइन कर लीजिए, आप भी 2 सेशन ज्वाइन कर लें, जी तो आपको डायरेक्ट वहाँ से तो वो उसको शेयर कर सकता हूँ। मैं कुछ ये ना जो क्वेश्चन उसी अंदर मेरी मैं इसी सेशन तरह शेयर कर लूँ। जी जी सर ये हमारे चीज़ में है ना ये भी वही बात थी ठीक है उसमें आप फाइनली तुम्हारे पर ये ब्रेकफास्ट तो मेरी तो मेरी वो ये फ्रॉम क्रैश कर लो आपने ज्वाइन किया आपने? आप ज्वाइन मैं कर ज्वाइन कर रहा हूँ सर Recording in progress. कोई ट्रबल है सर, मुझे शेयर करने में पता नहीं। मैं सर डिफिकल्टी। जी अभी आ गया सर। ये सब विजिबल। जी डॉक्टर साहब आ जाइए। ये क्वेश्चन मेरा आपका है सामने आ रहा है क्वेश्चन मेरा आपका आ गया इसके डबल ब्रैकेट करिए और ये आप क्या करेंगे आप एक्सप्लेन कर लेंगे क्वेश्चन आपने बताया कि सर ये क्वेश्चन इज नाउ विजिबल, हाँ आप जी क्वेश्चन करें क्या पूछना चाह रहे हैं? जी आपको आवाज आ रही है अयाज? जी जी सुन रहा हूँ सर। जी जी आप देखिए क्वेश्चन, आप क्या सवाल करना चाह रहे थे बताएंगे। सर बस क्वेश्चन है इसके ना, जो क्वेश्चन सर इसका ना वो देखना चाह रहा था कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के हैं, जिसकी बेस पे सर, क्योंकि सर इनकी जो स्टडी है ना ये टोटल एक्सीलेंट सर रिजल्ट शो कर रही है।
जो ये है इनका जो रिजल्ट था मोस्टली सर आप देखें 0.92 और इस तरह वो उससे ना अबव है, ग्रेटर देन है। तो एज पर द क्रोनबेक अल्फा सर ये तो इनका एक्सीलेंट है, मतलब ये यही साबित होता है कि बायसनेस जो है ना वो कुछ भी नहीं है बैंकिंग सेक्टर में। From like the front होता है, there is a reliability layer. जी That is not to test here, सारे ऐसे नजर आ रहे हैं. That is a reliability layer. You हम्म। can understanding भी sure. So वो बता दें, जो आपने reliability डेवलपमेंट किया था, वो दिखा दें. तो जो आपने स्केल यूज नहीं, किया रिलायबिलिटी कौन सी किसकी? उसकी- रिलायबिलिटी। अच्छा अच्छा, रिलायबिलिटी की जो करें। आप हाँ जी। ये एक्सप्लेन करें कि जो मैंने स्केल यूज किए हैं कि उनकी रिलायबिलिटी शो की। वो तो क्वेश्चन की रिलायबिलिटी है जी, वो। हाँ जी। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम्म। हैं, जहाँ तक लगता तो है. बेसिकली आप जैसे मुझे बताया रिस्पेक्टेड टीचर, जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी वो क्वेश्चनरीज की ऊपर, बेसिकली उन क्वेश्चंस के ऊपर है रिलायबिलिटी। जो क्वेश्चन है वो रिलायबल हैं या नहीं है, वन साइडेड तो नहीं है, या मेरे जो वेरिएबल्स हैं उनको, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी रिलायबिलिटी की टेस्टिंग है बेसिकली वो। या साहब? चलें ठीक है, ठीक है। ठीक, थैंक यू। वेलकम। इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी करें. मैं से डाल दिया कि आपको पढ़ के आए उससे लेकर क्वेश्चन करें. सर कामरान आप जी सर. आपको मैं कहना चाहूँगा कुछ थोड़ी माइनर चेंजिंग है। आप अगर थीसिस सॉफ्ट कॉपी में पढ़ा है तो ओपन कर लें, या फिर मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। आप एरिया बताएं. सबसे पहले जो एक्सट्रैक्ट है आपका, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट होता है वो पार्ट ऑफ ऑल थीसिस। वी कैन से दैट दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू, दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ मेथोडोलॉजी, दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ रिजल्ट्स। तो आपने ना एब्स्ट्रैक्ट में कुछ वर्ड यूज किए हैं, कैन, दिस कैन बी। तो एब्स्ट्रैक्ट जो क्लियर रिजल्ट्स को शो करना चाहिए। जो आपके रिजल्ट्स आए हैं थीसिस में, एब्स्ट्रैक्ट उसको ही प्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, एक दो लाइन ना आप क्लियर उसमें मेंशन करें कि मेरे रिजल्ट्स ऐसे आए। ठीक। इसके अलावा आपने सुपरवाइजर बाइस की बात की है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सुपरवाइजर बाइस। तो सुपरवाइजर बाइस में आपने इस एक ही चीज को देखा है, ओवरऑल कलेक्टिव एक चीज को देखा है कि सुपरवाइजर बाइसनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, या इसमें आपने कोई सब टाइप्स देखी हैं कि सुपरवाइजर बाइस में ये वाली चीजें होती हैं। मैंने फर्दर इसको आके स्टडी की है, क्योंकि हमने रिसर्च में स्पेसिफिक होना पड़ता है। कोई भी वेरिएबल है स्पेसिफिक, यानी कि एक वेरिएबल की मुख्तलिफ डायमेंशन हो सकती हैं। सुपरवाइजर बाइस में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ये फर्दर आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपने सुपरवाइजर बाइस में क्या क्या चीजें देखी। तो अगर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में आपने एक चीज मेंशन की हुई है सुपरवाइजर बाइस लाइक करप्शन, तो इसका मतलब क्या है कि आपने सुपरवाइजर बाइस में करप्शन को देखा है, मेजर किया है, या किसी और चीज को मेजर किया है। अगर करप्शन सर उसमें ठीक है, मैं आई गॉट योर पॉइंट, मैं समझ गया आपकी बात। तो वो मैं कह रहा हूं, आपने एक दो बार यूज किया हुआ है ना करप्शन का, तो फिर आपने फर्दर इसको एक्सप्लेन भी करना है, इसको मेजर भी करना है। ठीक। करप्शन के वेरिएबल को फिर आपने मेजर करना। सही। तो अगर आप यानी कि स्पेसिफिक कहेंगे सुपरवाइजर बाइस में ही आपने सारी चीजें देखनी है, तो फिर एक वर्ड करप्शन का फिर यूज ना करें एब्स्ट्रैक्ट। ठीक ठीक। ठीक है। करप्शन वो वर्ड। इसके अलावा इंट्रोडक्शन मैंने रीड किया, तो उसमें जिस तरह आपने मेथोडोलॉजी में बात की डिडक्टिव अप्रोच की, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो भी हम चीजें पहले जनरलाइज करते हैं उसके बाद स्पेसिफिक इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो इसके ऊपर जो इंट्रोडक्शन में आपने एकदम से स्टार्ट किया है बैंकिंग सेक्टर का, जो थीसिस की मैं बात कर रहा हूँ, थीसिस के इंट्रोडक्शन में। तो पहले आपको थोड़ा चाहिए थोड़ा सी चीज़ों को जनरलाइज करें, उसके बाद फिर वेरिएबल्स को डिस्कस करें, उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉब्लम यानी ये चीज़ें आ रही हैं तो फिर वो इंट्रोडक्शन में डिस्कस करें। इस तरह यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए। डायरेक्ट से पहली लाइन ही ये आपने स्टार्ट की है कि इन बैंकिंग सेक्टर, इस तरह की यानी कि आपने ठीक, लिखा मतलब आप कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दें और फिर उससे ऑनवर्ड क्योंकि आए। डिडक्टिव अप्रोच है ना, ठीक। जनरल टू स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने थ्योरीज ऐड की हुई हैं इंट्रोडक्शन में, जो थीसिस की सॉफ्ट कॉपीज है, अगर आप देखेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। थ्योरीज शुड बी Link पार्ट theories, ऑफ लिटरेचर रिव्यू। ठीक।
तो ये और थ्योरीज को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, यानी कि आपने थोड़ा बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन थ्योरीज का दिया हुआ है, एक पैराग्राफ में आपने दिया हुआ है। आपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपने स्टडी के 5 वेरिएबल्स हैं, आपने जो भी ये 2 थ्योरीज आपने यूज की हैं, तो आपने इसको अपने 5 वेरिएबल से रिलेट करना है। किसी एक वेरिएबल को ये डिस्कस ना करें, क्योंकि आपने पूरी ये थ्योरीज आपके पूरे मॉडल को प्रेजेंट कर रही हैं, तो इसको थोड़ा सा आपने एक्सपेंड करना है। एक तो ये चीज आपने करनी है। इसके अलावा लिटरेचर ठीक है, मेथोडोलॉजी में आपने बात की कन्वीनियंस सैम्पलिंग अप्रोच की। तो अगर आप जजमेंटल हैं, आपको पता है कि आपने 5 पब्लिक सेक्टर बैंक से ही आपने डाटा कलेक्शन करनी है, यानी कि पहले आपने डिसाइडेड है इस बात के बारे में, तो फिर आपको परमिसिव सैम्पलिंग, यानी कि आप जजमेंटल हो रहे हैं ना, कि आपने प्राइवेट सेक्टर भी तो है, पब्लिक सेक्टर में ये जो बैंकिंग है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी तो हैं, फॉर एग्जाम्पल ज़रीए तरक्याती बैंक के अलावा आपका ज़रीए तरक्याती बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और कौन से हैं आपके? फर्स्ट मोबन बैंक, फर्स्ट मोबन बैंक है, सिंध बैंक है, जी, ज़रिए तरक्याती बैंक है, जी। और बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब है। पब्लिक सेक्टर में और भी तो बैंक आ सकते हैं, होते हैं। तो अगर आप जजमेंटल हो रहे हैं, तो आप अपनी जो सैम्पलिंग टेक्निक है और सैम्पलिंग अप्रोच है ना, वो भी आप स्पेसिफिक पे रखें ना, कि उसका फिर बैकग्राउंड भी आप दें कि इन एरियाज में, इन ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली प्रॉब्लम थी, ये गैप था, इसलिए मैं इसके ऊपर थीसिस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं यानी कि आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आप जो मेथोडोलॉजी में ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता दें, कि आप इस वजह से आपने इन ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये इसमें ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आप जी। इसके अलावा आप रिजल्ट में तो ओवरऑल जो जो जैसे पहले बात हो रही थी, वो वैल्यूज आपकी यानी कि सही रिप्रेजेंट कर रही हैं रिजल्ट्स को, कि जिस तरह सुपरवाइजर बायस आप कह रहे हैं कि नेगेटिवली ने इफेक्ट किया है प्रोजेक्ट सक्सेस को, और जो मीडिएटर है उसका क्या इफेक्ट है? मीडिएटर इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन मीडिएटर जब सुपरवाइजर 22 फुल मतलब फुल उसके अंदर सुपरवाइजर 22 ज्यादा डिसीजन मेकिंग, और सुपरवाइजर 22 की वजह से वो मीडिएटिंग रोल जो है ना, वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, पार्शियली इम्पैक्ट करता है। लाइक आप जिस वक्त सम टाइम ऐसे होता है, सुपरवाइजर 22 एक बंदा, सपोज एक बंदा एक प्रोजेक्ट के लिए सही है, और वो सुपरवाइजर 22 की होता है कि जो सुपरवाइजर कहता है कि इसको वहां पर ही लगाना है, तो सक्सेसफुल भी हो सकता है। पार्शली वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, उससे प्रोजेक्ट सक्सेस के ऊपर 100% नहीं करता। लाइक वाइज जो मॉडरेटेड रोल मैंने इस्तेमाल किया, स्टेक होल्डर और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वो जिस तरीके से उसके अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं उस प्रोजेक्ट को, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और जो आपका मॉडरेटर है वो आपको वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो सुपरवाइजरी बाइस को रिड्यूस कर रहे हैं, आपके कहने का बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सही है। तो अगेन में ये बात मैंने थीसिस में देखी है कि आपने फर्दर सुपरवाइजर जो सुपरवाइजरी बाइस है, इसको आपने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, फेवरेटिज्म और इस तरह की बातें नीचे, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। जिस तरह पहले बात की कि अगर करप्शन की आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, या ओवरऑल एक सुपरवाइजरी बाइस को आप एक सर ओवरऑल सुपरवाइजर 22 को मैं कह रहा हूँ, करप्शन का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, वो ये भी जो बाइसेस है इज आल्सो अ पार्ट ऑफ करप्शन, अ काइंड ऑफ करप्शन इज पार्ट ऑफ हाँ, सुपरवाइजरी yes, बाइस से, yes, yes. बट आपको ये क्लियर होना चाहिए ना कि सुपरवाइजरी बाइस में आप क्या क्या चीजें मेजर कर रहे हैं, वो जो फिर आप स्केल यूज करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें आप करप्शन भी देख रहे हैं, उसमें आप फेवरेटिज्म भी देख रहे हैं, या कोई और चीज भी देख रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा चीजें आप यानी कि स्केल्स पे अगर हम बात करें ना, तो आपने विद रेफरेंस वो स्केल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, जो भी आपने थीसिस की कॉपी में मेंशन नहीं की है। विद रेफरेंस आपने आपने क्वांटिटेटिव स्टडी है ना, आपने विद रेफरेंस बताना है कि मैंने फलां ऑथर का, फलां रिसर्चर का मैंने स्केल यूज किया है, उसकी बेसिस के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन आगे यानी कि सर्वे जो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, मगर आप जो क्लियर करें, जिस तरह क्वेश्चन पहले हो रहा था ना आपसे ऑनलाइन में, कि आप कि वो क्लियरिटी नहीं, अब वो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है, मगर आप क्लैरिटी को करें ना कि आपने किन रिसर्चेस से ये रेफरेंस लिया है, को किस बंदे का ये स्केल यूज कर रहे हैं, वो रेफरेंस मेंशन करें, और क्वेश्चनर को क्लियरली मेंशन करें, इंस्ट्रूमेंट्स की हेडिंग दे के ना आप मेथोडोलॉजी में ये वाली हेडिंग ऐड करें, ठीक ताकि वो क्लियर हो जाएगा, पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि वो आपने क्वांटिटेटिव स्केल्स कौन से यूज किए। ठीक। इसके अलावा जो डिस्कशन है, वो मेरे ख्याल में आई थिंक वो मिस है सर, जो डिस्कशन का जो
रिजल्ट्स डिस्कशन जिसे हम कहते हैं ना, लास्ट में जो हमारा चैप्टर होता है, वो आपने डायरेक्टली आपने कंक्लूजन से स्टार्ट किए। बिल्कुल थोड़ा उससे पहले ना जो रिजल्ट डिस्कशन की बात करें, जनरल डिस्कशन की बात करें, उसके बाद फिर आप कंक्लूजन, फ्यूचर रिकमेंडेशन और इन चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली आपने कंक्लूजन की बात नहीं करी। तो ये कुछ चेंजेस है जी, तक रिलेट, ये मैंने वैसे पॉइंट्स लिख भी दिए हैं और सर से भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे भी, ताकि आपने ये आपकी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आपने यानी कि बड़ा अच्छा स्ट्रगल किए, ताकि आपने फिर कल को इसमें से रिसर्च आर्टिकल अगर आपने काम करना है ये तो, ताकि कम से कम आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो, कोई चीज़ कमी ना रह जाए फर्दर आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी सर। थैंक यू। ठीक है रफीक, आप मेरे स्टूडेंट भी रहे, मैं आपको जानता हूँ कि आप कितनी एफर्ट करते हैं और इस तरीके से। तो एक मुझे जो इसमें मतलब मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बात करूँगा, अंडरस्टैंडिंग का फुकदान नज़र आ रहा है मुझे ओवरऑल। फ्लो इतना अच्छा नहीं है आपकी प्रेजेंटेशन का, ठीक है। सॉर्ट ऑफ आप जल्दी में नज़र आए, हर चीज़ लिखी हुई थी, आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं था, जिससे ये फीलर आता है कि आप चाह रहे हैं कि बस मुझसे कोई इंटरेक्ट ना करे और मैं जल्दी से गुजर जाऊँ इस रास्ते से, और कोई सवाल जवाब ना ही हो बस। सर आपकी ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल ठीक है सर। कंफ्यूजन एक 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 होता है साइकोलॉजिकल, एक स्ट्रेस भी होता है, एक मतलब आप समझ, मैं उस वर्ड को नहीं, वो थोड़ी सी एक एंजाइटी होती है कि एनवायरनमेंट की। नहीं होना चाहिए, तो मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस भी है और बैंकिंग सेक्टर में भी है, डेली आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ होता होगा, तो आपसे थोड़ा सा बेहतर एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मैं इसमें सिर्फ तुमसे एक सवाल करूंगा, मतलब कुछ थोड़े से सवाल भी करूंगा। प्रेजेंटेशन में जहाँ जहाँ तुमने प्रेजेंटेशन खोलो था, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहूंगा कि आपने ये सिर्फ लिखा हुआ पढ़ा है या आपको उसकी समझ भी है। सर मैं प्रेजेंटेशन अगर आप खोल तो नीचे यहाँ से इधर से जी 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 सर इसको क्लोज कर दूं सर, रनिंग टाइम आउट। रनिंग टाइम को बंद कर दें, क्लोज करें, क्रॉस करें। इसमें इसी तरह से स्लाइड भी नीचे आए जरा, जहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जरा उस तरफ आराम आराम से। अच्छा, इधर एक दफा पीछे जरा जाके रुक जाइए। इधर आपने एक जगह पे नेक्स्ट पिछली स्लाइड पे चले गए, वो है पिछली साइड सर। पिछली। हाँ, आप सैंपल साइज आपने जो रखा है, जरा इस पे मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि सैंपल साइज जो 250 रखा है आपने, ये किधर से निकला है और कैसे आपने निकाला है? सर क्वेश्चन भी थे Why कि 250? जी Why गूगल 250? गूगल फॉर्म के ऊपर मैंने स्कैटर्ड किया और वहां से डाटा क्लिक। ठीक है, वो तो डाटा कलेक्ट किया ना, लेकिन ये नंबर जो है आप एक एनालिसिस कर रहे हैं कुछ वेरिएबल्स की, इम्पैक्ट एनालिसिस ऑन सम अदर वेरिएबल्स, जो कि आप फिर कमेंट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट्स ये आ रहे हैं, और उसके लिए आपकी एक पॉपुलेशन है, ये सारे बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जो बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना। अब आपने ये रिजल्ट्स निकाल दिए हैं, ये आपके बकौल सब पे एप्लीकेबल है। दिस इज व्हाट योर कंक्लूजन आर, ठीक है। बट उसके लिए जो आपका सैंपल साइज है वो एक सुटेबल सैंपल साइज होना चाहिए बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि 250 नंबर ये कहाँ से आया, और क्या आप इसकी इसकी एनालिसिस की बेस के ऊपर ये सारे रिजल्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सवाल। सर 250 मेरा, मैंने तो ज्यादा दिए थे, तो 250 जो मेरा मेरा टारगेट था 250 का पॉपुलेशन साइज, मैंने मतलब फोकस नहीं किया हुआ था। मुझे एक्सपेक्टेशन यही थी कि इतना आएगा, 200 प्लस आएगा। इसका मतलब है आप उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं की, क्योंकि आप ड्रॉप थी कि आ गया है फ्यूचर डायरेक्शन की स्लाइड पे चले जाओ, कहां से आगे पीछे आपने ये सवाल सही कॉपी भी अपने पास रखो, एक कुछ लिखने के लिए कि ये सवालों के जवाब आपने ढूंढने हैं। ठीक ठीक है, ठीक। चलिए आप दूसरी स्लाइड ओपन करें तो तब सब पे इस तरह होगा। इसमें ऊपर मूव करें ना, जो नेक्स्ट कहें ये कौन सा होगा? 15 नंबर। जो आपकी अभी स्लाइड थी ना जिसमें आपने सैंपल स्लाइड Sample शो slide किया का डिजाइन। हाँ, बस ये थी यही स्लाइड। चलिए ये भी सुन लिया सर, आपने साथ लिखा तो आपने बस को इस तरह ही रखी, क्योंकि आपको मैं इसमें से कुछ डिलीट करा के कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा। ठीक है, ये अगली स्लाइड का आज तक चेक करें। एक तो आप सैंपल साइज पॉपुलेशन इनका रिलेशनशिप क्या होता है, जरा ये आपने पढ़ना भी है, समझना भी है और मुझे समझाना भी है। ठीक है, कि ये स्टडी पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हम क्यों एक खास सैंपल साइज पे जाते हैं। ठीक है?
अच्छा, अब जो सैंपल है इसमें आप सैम्पलिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग पे क्यों गए? ये डॉक्टर साहब ने आपको थोड़ी देर पहले सवाल किया, तो आपकी क्या लॉजिक, व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ सैम्पलिंग? और क्या आपको कोई और टाइप ऑफ सैम्पलिंग पता है? कुछ और भी होती है, 3 4 5 6? सर वो उन्हें कहते हैं SPSS पे जिस वक्त मैं कर रहा था तो उसमें मुझे यही लगा, यही सारी की सारी उसमें होता था, तो मैंने नहीं, इसका एक जवाब होगा, ठीक है, दो जवाब हो गए, ये भी लिख लीजिए। इसको आप लिख लीजिए, नहीं पता कोई बात नहीं, फिक्र रखा होती है क्या इसका जवाब होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलिए, लिखिए। चलिए। जी सर। अच्छा, जो रिजल्ट्स आप आए हैं, ये सैंपल साइज आपने ले लिया, आपने इस पे रिजल्ट्स ले लिए, दो टर्म्स और भी यहाँ यूज होती है, उनका आप नाम लेते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल एक होता है इस रिजल्ट्स के ऊपर, और एक मार्जिन ऑफ एरर एक टर्म है। क्या वो कैलकुलेट किया आपने इस सारे लेटर रिजल्ट्स जो, या आपको पता है क्या चीज होती है? मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की एक चीज होती है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब करते हैं तो ये वैल्यूज भी जी आप निकालते हैं कि जो मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस हद तक वाकई ठीक है, मैं इन पे कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ इसका आइडिया है या किया नहीं किया, इसको भी बिल्कुल नोट कर ये लीजिए। आपकी वैल्यूज आई हुई थी स्पेसिस में, तो आपने रिपोर्ट नहीं की। आपने रिपोर्ट नहीं की ना, आपने पी वैल्यूज को तो रिपोर्ट कर दिया, मगर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वो वाली वैल्यूज, मार्जिन ऑफ एरर, उसको एक्सप्लेन नहीं ठीक। वो अच्छा। आपने ऐड करनी है, वो सारे नहीं पता है उसको। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब ने अगली एक चीज छोड़ी, पी वैल्यू क्या होती है? यू शुड नो इट, इसका क्या मतलब है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता क्या है आगे? सर पी वैल्यू बेसिकली वेरिएशन होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टुवर्ड्स डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरे जो मॉडरेटर होते हैं, मीडिएटर होते हैं उनकी। जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आपने खोल के देखी है, ये पी वेरिएबल इस तरह है। बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट आपको ये देखना चाहिए ना कि मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर पे नहीं रहना चाहिए कि बस सॉफ्टवेयर को डाटा दिया और उसने रिजल्ट्स दे दिए, फिर तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कम होगी ना। आपकी बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग एक नॉच अप होनी चाहिए सॉफ्टवेयर से, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे फॉर एवरी स्टूडेंट वी ऑल शुड एक्सप्लोर इट कि ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, इसकी क्या मैथमेटिक्स। कल को मुझे मैनुअल करनी पड़े, किसी को बतानी पड़े, तो आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि ये भी ऐसे नहीं करता है, क्रॉनबैक डाटा ऐसे नहीं करता, क्या ख्याल है? ठीक। पता बिल्कुल। होना चाहिए। बिल्कुल। तो जितनी भी मैथमेटिकल टर्म्स यूज हुई हैं, आप इनको भी होमवर्क कीजिए, देखिए जाके खोल के कि यार ये है क्या, और असली मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, ठीक। बिल्कुल। आप आगे आ जाइए, स्लाइड पे नोट कर लें आप, मैं कर ताकि रहा आप फिर बात हुई इसमें। यहाँ पे इधर एक सवाल है मेरा, गेम की स्लाइड के ऊपर, फिर आप करेंगे स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, लेकिन ये पता होना चाहिए ना आपको, सर। ये मीन क्या है यहाँ पे जो निकला हुआ है, किस चीज का मीन निकाला हुआ है आपने? अगर मीन इसको सर। क्रिएट कर सकें आप, अपने क्वेश्चन है सर। जैसे पहली वैल्यू है सुपरवाइजर बायस, मीन है 3.20। सर ये मीन मीन ये बेसिक। कैसे निकला, मतलब क्वेश्चन में चले जाए जहाँ पे ये आपने इसके आंसर्स दिए हैं, और आप मुझे बताएंगे कि ये मीन निकला कैसे है। क्वेश्चन आपने सर कहा ये जो उसका 150 फाइव। हम सर। क्वेश्चन फिल कराए मैंने, 250 क्वेश्चन फिल कराए, वो फील्ड भी आपके पास होने चाहिए, जी जी। ताकि हम देख सकते हैं कि क्या फिल करवाया आपने, खुद तो नहीं फिल कर लिया आज से। बेसिकली सर वो जो मैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग की 5 लिंक क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चंस थे कि बेसिकली उसका जो मेरे वेरिएबल्स जो क्वेश्चनरीज रिलेटेड वेरिएबल्स रिलेटेड क्वेश्चनरीज थी मेरी, जो उनकी परसेंटेज थी, ये वो है, वो दैट इज 5 में से ये 3.2 जो है मीन है ये उस 5 का। तो मैं वही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जस्ट मुझे इस क्वेश्चन में बता दें कि सर ये 5 क्वेश्चन जो थे, इनकी जो